हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फुतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, एक आज की सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा की हसूर अपने आप को झुकाएं और खुदा की हसूरी में झुककर खुदा का शुक्र करें। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्रगुजार हैं। खुदा अपने लोगों को प्यार करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें चाहिए कि हम सुबह उठकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। आइए आज की कलाम से हम सीखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15 बाब उसकी 21 से चंद आयतों पर गौर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, एक यहूदी जो उसका ईमान देखा जाता है, परखा जाता है और उसको ईमान से आजमाया जाता है, और उसका ईमान देख रहे हैं यीशु मसीह। तो आइए उस औरत की तरफ देखते हैं। 15 बाब की 21 से चंद आयतों पर गौर करेंगे। फिर यीशु वहां से निकलकर सूरा और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कहनानी औरत उन शहरों से निकलकर और पुकार कर कहने लगी कि खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बुरी तरह सिताती है। मगर उसने कोई कुछ जवाब न दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये मिन्नत की, अर्ज की कि इसे रुखसत कर दे, क्योंकि ये हमारे पीछे चुरलाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घरानों की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। उसने कहा, हाँ मालिक खुदावंद, क्योंकि जिस किसी ने भी उनमें मालिकों ने कुत्ते खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उनके मालिकों में से गिरता है, वो खाते हैं जो उनके मालिक की मेज से गिरता है। उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने उस औरत का ईमान देखा, और वो औरत बड़ी परेशान, मुसीबत में, दुख में। कोई भी इंसान है, इंसान तो कहीं रह गया। अगर कोई जानवर है तो उनकी औलाद जब दुख में होती है तो वो दुख में परेशान होता है,
لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے پھر اپنی بھاگ دوڑ محنت بڑی کرتے ہیں تاکہ یہ اس کی زندگی بچے۔ اس بہن کی طرف دیکھیے جو ان سرحدوں سے نکل کر آئی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری بیٹی کو ایک بدرو بری طرح ستا رہی ہے۔ میرے عزیزو، ایک بدرو ہم دیکھیں تو ہمارے اندر کتنی بدروہیں ہیں۔ مت سوچیں کہ ہمارے اندر بدرو نہیں۔ جب ہمارے کام کردار، ہمارا پھل، ہمارا بولنا چالنا اور ہمارے رویہ وہ بدرو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ کلام خدا کے اندر کہ جو گالی دینے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، سنا کاری کرنے والا ہے، ان کا باپ جو ہے ابلیس ہے۔ تو ابلیس جب ان کا باپ ہے تو پھر ان کو رہائی کیسے ملے گی؟ آج ہم غور کرنی ہے، جب بدی کے لیے ہم قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارا قدم بڑی دلیری کے ساتھ بڑھتا ہے، تو جب خدا کے لیے ہم قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر قدم پیچھے کی طرف جاتا ہے، کیونکہ سچائی جو ہے وہ ہمیں ہماری زندگی سے ظاہر نہیں ہونا چاہتی، اور جو سچائی کو قبول کرے گا، جو سچائی کو قبول کرے گا، سچائی اسے آزاد کرے گی۔ آج اس بہن کی بیٹی کو جب اس نے بڑے ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ اظہار کیا تو یسوع اس کے ایمان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو ایک لفظ کتے کا بھی کہا گیا تو اس نے کہا، اے مالک، جو لوگوں نے کتا رکھا ہو تو جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو ٹکڑا نیچے گرتا ہے اور کتا وہ کھا لیتا ہے، اور خداوند وہ تیرا شکر گزار ہے۔ رہی بات، یسوع مسیح نے کہا، اس عورت نے بڑا عاجزی کے ساتھ کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ تو یسوع نے کہا، میں اسرائیل کے گھرانوں کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ میرے عزیزو، اسرائیل کے اندر نبی انبیاء پیدا ہوئے، لیکن آج ایمانداروں کے لیے خداوند یسوع مسیح، جو بھی کوئی ایمان لے آئے، اس عورت کی طرف دیکھیے، یہ کونان کی طرف سے آئی تھی اور یہ کنانی عورت تھی، اور کہنان سے ان سرحدوں سے نکل کر اور آئی اور پکار کر کہنے لگی کہ اے خداوند میری مدد کر۔ تو یسوع نے صاف سرعام جواب دے دیا، لیکن ایک وقت آیا جب یسوع نے اس کا ایمان دیکھا تو پھر یسوع نے کہا، اے عورت، جو تو چاہتی ہے تیرے لیے ہو جائے۔ اور وہ عورت یسوع مسیح کے پاس تھی اور بیٹی اس کی گھر پہ تھی، اور بیٹی نے اسی وقت شفا پائی۔ یہ کتنا خدا کا جلال، یسوع مسیح کا جلال، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ آج بھی وہ آواز بلند ہے، آج بھی وہی
किरदार है। आज भी वो अपने लोगों के अंदर रहकर अपना काम ले रहा है। मेरे अजीजों, जो लोग उसके हजूर नहीं आते, उनके अंदर बदरू काम कर रही है। वो बदरू यीशु की हजूरी में आने के लिए मना कर रही है। चले चलते हैं, चले चलते हैं, चले चलते हैं। वो चलते चलते देर लगाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ फॉर्मेलिटी को पूरा करना। और मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग हैं, बेहद लोग हैं, जो चर्च नहीं जाते, जो खुदा की हजूरी में नहीं जाते, जो खुदा को कबूल नहीं करते, जो खुदा के साथ वफादारी नहीं करते। उनके अंदर अबलीस का ये मंसूबा है, उनके अंदर बदरू है, ताकि वो खुदा के काम को खिनौर करते हैं, वो खुदा की कलाम को रद्द करते हैं, वो खुदा की कलाम के साथ वफादारी नहीं करते। जो वफादारी करेगा यकीनन वो ईमानदार होगा। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावन के लिए तैयार करें और तौबा करें। तौबा के बाद बपतिस्मा लेकर फिर पाक रूह के मुंतज़िर रहें। पाक रूह दलेरी देती है, कुव्वत देती है, जोर देती है, बरकत देती है। पाक रूह के वसीला फिर हम फजल के नीचे आए। जब फजल उसका आपके ऊपर होगा तो फजल हमेशा आपके साथ रहेगा। फजल आपके लिए उसका काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आज हम फजल की तरफ बढ़े, फजल को अपनी जिंदगी के अंदर लें। तो जब तक हम फजल को नहीं लेते, फजल नहीं लेना चाहते, फजल की तरफ भागते नहीं, ना हमें शिफा मिलेगी, ना हमें बरकत मिलेगी, ना हमें कुव्वत मिलेगी। हम फजल के नीचे नहीं, हमें उस जगह पे डाल दिया जाएगा जहां पे आंखों का रोना होगा और दांतों का पीसना होगा, और वहां पे हमेशा की जिंदगी के लिए ये अजाब होगा। और मेरे अजीजों, उस अजाब से बचने के लिए आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान ले आएं और खुदा को कबूल करें। और जैसे इस बहन ने अपनी बेटी के लिए शिफा ली और बरकत ली और अपने ईमान को जाहिर किया, आज हमें भी अपने ईमान को जाहिर करने की जरूरत है। तौबा करें। जब तक हम ईमान नहीं लाते, कितना मसीह कहलाएं, कितना हम अपने आप को खुदा के बेटियां बेटे कहलाएं, कितना चर्च की तरफ जाएं, लेकिन जब तक हमारे अंदर ईमान नहीं। बेशुमार लोग चर्च जाते हैं, इबादत करते हैं, खुदा की हजूरी में झुकते हैं, गालियां भी देते हैं, वो शराबें भी पीते हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक वो मसीह है जो झूठा नबी था। मेरे अजीजों, आज हम उस पर गौर करें कि बार यीशु जो है वो एक झूठा नबी है। बार यीशु को हमने कबूल किया। बार यीशु सूबेदार ने बरनबास को और यूहन्ना को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा, और जब कलाम सुन रहा था तो कलाम मुकद्दस सुनते सुनते उसने ईमान ले आया, तौबा करने लगा। जब तौबा करने लगा तो क्या वो जादूगर आकर कहने लगा, तू तौबा क्यों करने लगा है? बार यीशु मैं हूं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है, बुराई है,
बुरा मंसूबा है, बुरी रवश है, बुरा ख्यालात है, बुत परस्ती है, जादूगरी है, झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, तो फिर बाइबल मुकद्दस कह रही है, मैं नहीं कह सकता, बाइबल मुकद्दस कह रही है, यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 44 आयत में लिखा है कि तुम उसके क्या हो, फर्जंद हो, उसकी बेटे हो। यीशु मसीह कह रहा है कि जिसका तुम काम कर रहे हो उसके बेटे हो, वो तुम्हारा बाप है। आज हम किसी को कह देना शैतान दिया पुत्रा, तो कितना गुस्सा आएगा, लेकिन जब हमारा किरदार वो होगा, जब हमारा इंतजाम वो होगा, जब हमारे अंदर गालियां होंगी, जब हमारे अंदर बुराई के मंसूबे होंगे, तो फिर हम जाहिर है खुदा के कलाम के मुताबिक शैतान के फरजंद बनेंगे, उसके बेटियां बेटे बनेंगे। मैं बड़े दावे के साथ इस बात को वजाहिर करता हूं, मैं बादशाह के बादशाह का बेटा हूं। बादशाह का बादशाह यीशु मसीह है, वो बादशाह का बादशाह है। कितनी हुकूमतें हैं, कितने बादशाह हैं, कितने वजीर हैं, कितने नाज़म हैं, सबका एक ही खुदा है। वो बादशाह दूसरों को बादशाही दे रहा है, वो बादशाह मुकर्रर करता है, वो वजारत मुकर्रर करता है, वो हुकूमतों को मुकर्रर करता है, वो बादशाहियां चलाने की कुदरत रखता है। आज हमें भी चाहिए कि हम उस बादशाही के वारिस हो जाएं, उसकी बादशाही को अपनी जिंदगी के अंदर लें, उसके बेटे बने, उसके इलाजादे बने, उसकी शहजादे बने, उसकी शहजादियां बने, ताकि वो अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। ऐसा ना हो कि जब वो हमें बुलाए, जब वो हमें लेने आए, तो हमें कहे, ऐ बेदखारो, ऐ मलाउनो, मेरी आंखों से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाफियत ना थी। आज हम उसके साथ वाफियत करें, जैसे ये बहनें औरत उन सहरतों से निकलकर और पुकार कर कहने लगी, क्या खुदावंद मेरी मदद कर। हमें भी मदद की जरूरत है, हम भी उसके हजूर आए और उससे मदद मांगे और उससे कहें, ऐ खुदावंद हमारी मदद कर। आइए खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे आज की सुबह के लिए, आज के कलाम खुदा के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए खुदा का शुक्र करेंगे, दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए। तूने हमें प्यार किया है, तूने हमें मोहब्बत की है, तूने हमको इस जमीन पर रखा, तेरा शुक्र करते हैं। तू वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, आबदी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, तेरा शुक्र गुजार। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो। बाप आसमानी, मेरी दुआ को सुन, अपना हाथ बढ़ा। बच्चों के साथ हो, बच्चों की जिंदगी को बदल, उनके मुआशरा को बदल, उनके इरादों को बदल, अपनी पाकरू को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। यीशु नासरी बच्चों की हिफाजत करना। जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे, खुदावंद तो उनके साथ हो, उनके ज़हनों को खोल, उनको बरकत दे, उनकी
साल की मेहनत खुदावंद तो उनको अजर देने की कुदरत रखता है। बड़ी बरकत देना, रूहानी जिस्मानी बरकत को वो रिसीव करें और बड़ी खुशी के साथ पेपरों में मदद करना। खुदावंद उनकी मदद के लिए अपनी पाक रूह को नाजिल करना, अपना जलाल जाहिर करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर बच्चों के साथ रहना, टीचर के साथ रहना, बाबा बीबी यीशु बल्कि पूरे मुल्क के साथ, कौमों के साथ, कबीलों के साथ, दुनिया के साथ हमेशा खुदावंद तो उनकी रहनुमाई करना और खुदावंद तो ईमान के लिए उनको तैयार बेदार करना। तुझ में बड़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन के कबूल कर। तू जिंदगी का चश्मा, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी, तू लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शुक्र तुम्हें गानी है। पाक खुदावन तू जिंदगी का चश्मा है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा। जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। वापस माने तो अपने पाक फरिश्तों को भेज, अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। वापस माने तो जिंदगी का चश्मा, तो जिंदगी का मालिक है। तूने मुझे इस जमीन पर भेजा है, जाओ इबादत करना। मैंने तुझको माजूस किया, जैसा आज कलाम मुक़द्दस के अंदर खुदावन उस बहन की तरफ देखें कि वो उसके कैसा ईमान लेकर आई और खुदावन उसका ईमान ने उसकी बेटी के लिए शिफा का चश्मा बनी। खुदावन तो ही शिफा का चश्मा, तो ही शिफा देने की कुदरत रखता है। और खुदावन वो बेटी घर में थी और वो खातून तेरे पास थी, और तूने जब खुदावन अपने पाक मुंह से बात को निकाला तो उसी वक़्त उस बेटी ने शिफा पाई। ऐ खुदावन ये तेरा जलाल है, ये तेरी कुदरत, तेरी शान और शौकत है। और खुदावन तो अपने लोगों को बरकत दे। आज हम भी अपने ईमान में मजबूत हों और तेरी हमदो सना, तेरी सुताइश करें, तेरे नाम की मदद सिराई करें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शुक्र तुम्हें गानी है। पाक खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के कबूल कर। ऐ खुदावन आज की सुबह के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मीठी नींद रात भर अता की और सुबह का दिन बख्श दिया। ऐ खुदावन जो इस दुआ को सुने, खुदावन तूने बरकत देना उनके घरों में, उनके खानदानों में, कमी कमजोरियों को तरे करना और उन्हें अपने जलाल के लिए सरफराज करना। उनकी बीमारियां यीशु के नाम से जाएं, उनके सारे खुदा उनके माल जान पर तेरी बरकत आए। खुदावन तो अपने लोगों को संभालता है। खुदावन उनकी तमाम मुश्किलात तेरे नाम के वसीला जाए। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए। उन बीमारों के लिए मैं तेरे मसबा पर आता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं। खुदावन तो उनकी सारी परेशानी को देखता है और उन्हें शिफा देने की कुदरत रखता है। उन्हें खुशी के ऊंचे दिन दिखाने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो,
میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ ہو، ایک ایک زندگی کو اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھ، تمام پاسبانوں کے ساتھ ہو خداوند، اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے۔ میں ان ملکوں کے لیے خداوند تیرے حضور کر محنت کرتا ہوں جن ملکوں کے اندر جنگ لگ چکی ہے، خداوند تو انہیں سنبھال اور ان کی حفاظت کر۔ خداوند تو امن شانتی کا خدا ہے، باپ آسمانی تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، تو یہی چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ آئے خداوند تو اپنے ہاتھ کو بڑھا اور برکت دے، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والے روح بخش دے۔ باپ آسمانی اپنے ہاتھ کو بڑھا اور خداوند تو ان ملکوں کو سنبھال، ان ملکوں کی رہنمائی کر، تاکہ خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا کر انہیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ باپ آسمانی، میں ان بیٹیوں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو بے اولاد ہیں، ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر اولاد جیسی میراث پا کر تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو ظاہر کریں۔ آج کا تیرے حضور چکنا بخور کی مانند ٹھہرے، ابراہیم اسحاق یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ آج کا تیرے حضور چکنا بخور کی مانند ٹھہرے، ابراہیم اسحاق یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے۔ میری سوچوں کو، خیالوں کو، ارادوں کو بدل دے۔ آج جہاں بھی جاؤں خداوند تیرے نام کو سارا جلال دوں اور بہت ساری زندگیوں کو تیرے مذبح پر لانے کے لیے خداوند تو مجھے عقل دانائی دے، تاکہ خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری حضوری میں بڑھوں اور تیرے نام کو جلال دوں۔ تمام پاسبانوں کو، تمام چرچ کو، پنڈال کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں، خداوند تو ان کے ساتھ ساتھ رہنا، اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرنا، تجھ میں بڑھے اور تیرا بدن بنے اور تیرے نام کی جے جے کریں۔ سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو دیں۔ باپ آسمانی تو میری دعا کو سن قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دی، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائی سے بچا، کی بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت آپ سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصرین لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے، آمین۔